Good morning, all of you. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about nominations for the election and a little bit about the election campaign. In this module, we will discuss about election campaigns, voting, and polling list in detail. Okay? So, as I already told about that, election campaign generally take place 2 week periods in between the announcement of the final list 2 week periods in between the announcement of the final list and the date of polling. पोलिंग की डेट यानी जिस डेट पे इलेक्शन होना है उस डेट और जिस डेट पे नॉमिनेशन हुआ उस डेट के बीच का लगभग 15 डेज का टाइम होता है. ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर 15 डेज टाइम generally the elections campaigns taken places. ठीक है. Campaign is generally means that the different type of the political party who got the ticket they simply make a promises and they do they make the campaigns to attract the people so that the people will cast the vote for them too. ठीक है. तो इस पीरियड में क्या होता है कि कॉन्टैक्ट टू देयर वोटर्स लोग इलेक्शन कैंपेन में क्या करते हैं दे जस्ट विजिट टू डोर एंड जस्ट कॉन्टैक्ट टू द वोटर्स एंड जस्ट रिक्वेस्ट देम टू कास्ट द वोट इन द सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर. ठीक है. उसके अलावा पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस द इलेक्शन मीटिंग्स. बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो इलेक्शन मीटिंग को एड्रेस करते हैं. Means they make a place where they arrange a specific meeting. In this one they will just make a high level of gathering और उस gathering में वो उसको address करते हैं leaders कि अगर आप हमको वोट देंगे तो what we will do for that. मतलब all this means is only to attract the voters for that. ठीक है. इसके अलावा political parties जो हैं और अपने supporters को mobilize करते हैं. ठीक है. This is also the period when newspaper and televisions newses are full of the election related story and debates. At that time, a lot of leaders publish their manifesto and others things in their own supports in the newspapers and stories. तो newspaper में generally debates और stories print होती हैं. डिबेट्स में क्या होता है कि एक लीडर्स दूसरे लीडर से अपने आप को कंपेयर करता है उसको प्रिंट कराता है कि इस लीडर्स ने अपने 5 years के टाइम पर ये किया है इन द नेक्स्ट 5 year इफ यू गिव अस a chance then these are the things we will do for you and for your beneficial. ठीक है. This is also the periods when newspapers and television news are full of related stories done. Political parties start preparing for the election month before they actually take place. ठीक है. It is the symbol for the political party is already fixed. जैसे बीजेपी का जो सिंबल है पॉलिटिकल सिंबल वो ऑलमोस्ट फिक्स है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए. तो बिफोर द इलेक्शंस अनाउंसमेंट इलेक्शन का जैसे ही अनाउंसमेंट होता है अ मंथ बिफोर दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग देयर इलेक्शन कैंपेन्स की वो कहाँ कहाँ पे कौन सी रैलीज करेंगे कहाँ पर किसको कैसे अट्रैक्ट करेंगे कहाँ की कौन सी एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उस सब के एक लिस्ट बनाते हैं और उसके हिसाब से उन प्रॉब्लम्स को फोकस करके लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उनसे प्रॉमिस करते हैं कि इफ यू गिव द वोट और इफ यू कास्ट द वोट इन आवर फेवर so we will provide you these type of the facilities. ठीक है. In election campaign, the political party try to focus on the public attention on some big issues. जैसे मान लो गरीबी हटाओ है, इसके अलावा बेरोजगारी खत्म करो, इसके अलावा एक राम मंदिर का मुद्दा था, इसके अलावा नेशनलिज्म का एक पॉइंट है. ऐसे बिग इश्यूज को वो लेके चलते हैं कि इफ यू गिव अस अ चांस तो वी विल डू लाइक दैट. ठीक है. दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दिस बेसिस. ठीक है. वो उनका मेन पर्पस क्या होता है टू अट्रैक्ट द पब्लिक वोट. वो दे जस्ट कीप दिस पर्टिकुलर इशू इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक and public just think about if the public will cast the vote to them they will make the government and then after making the government they will fulfill the desire of the public but most probably it is not happening. देखिए कुछ ये जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपका इलेक्शन कैंपेन्स के स्लोगन्स हैं. कुछ पर्टिकुलर पार्टीज हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इलेक्शंस के टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्लोगन्स को यूज किया था टू मेक देयर पब्लिक अट्रैक्ट. ठीक है. उसके लिए जैसे मान लो ये कांग्रेस पार्टी जो कि इंदिरा गांधी गेव अ स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन लोकसभा इलेक्शन 1971. 1971 में एक स्पेसिफिक स्लोगन के साथ इंदिरा गांधी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी कांग्रेस गवर्नमेंट की लीडर्स थी उन्होंने स्लोगन्स के साथ 1970 का जो जनरल इलेक्शन लोकसभा था उसको लड़ा था और ये स्लोगन्स दिए कि गरीबी हटाओ. ऐसे सेव डेमोक्रेसी इज अ स्लोगन ऑफ द जनता पार्टी under the leadership of the जयप्रकाश नारायण इन द लोकसभा इलेक्शन 1977. ठीक है. तो ये जनता पार्टी के जो लीडर थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण उन्होंने लोकसभा इलेक्शन 1977 में
जो इलेक्शंस के लिए कैंपेन्स किए थे उनमें ये स्लोगन्स फॉलो किया था, सेव डेमोक्रेसी। ऐसी लेफ्ट फ्रंट एक पार्टी है, उसका एक जो स्लोगन था, लैंड टू द टिलर्स इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस। देखिए ये जो इनका स्लोगन है, ये जनरली 1977 में ही हैज यूज्ड द स्लोगन्स टू विन द इलेक्शन इन 1977 असेंबली इलेक्शन ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, दे आर नॉट गिवन द स्लोगन फॉर द नेशनल, बिकॉज ये लेफ्ट फ्रंट जो है वो जनरली एक आप कह सकते हो रीजनल पार्टी या स्टेट लेवल की पार्टी है, नेशनल पार्टी नहीं है। इसके अलावा प्रोटेस्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज was the slogan used for NT Rama Rao, the leader of the Telugu Desam party in Andhra Pradesh Assembly election 1833। देखिए जो बॉटम टूज हैं, they are the generally slogan which is being used to win the assembly elections only, and the top two are the slogans which are being used to win the लोकसभा इलेक्शन। मतलब जनरली विन हुए नहीं हुए दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट ये स्लोगन्स उन्होंने यूज किए थे फॉर अट्रैक्टिंग द पीपल। तो जनरली क्या था, जैसे गरीब एक पॉवर्टी वाज अ बिग इशू, डेमोक्रेसी वाज अ विश बिग इशू, और ऐसे अलग अलग तक करके जो बिग इश्यूज थे उनके स्लोगन्स बना के उन्होंने डिलीवर किए। ठीक है, ओके। इन द नेक्स्ट वन we will discuss according to the code of conduct। देखिए one more thing is very important, as per the election commission each and every party has to follow the code of conduct। exactly होता क्या है code of conduct? यूज ऑफ एनी प्लेसेस। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है एक्चुअली? एक ऐसी चीज है, एक ऐसे रूल्स का लिस्ट है जो हर एक पार्टी या लीडर्स को अडॉप्ट करना पड़ता है इलेक्शन कैंपेन्स के ड्यूरेशन में, कि अगर उसको वो एबोलिश करते हैं तो उनका जो मेन पर्पस है वो सब खत्म कर दिया जाता है, उनकी लीडरशिप भी खत्म हो सकता है। तो उसमें क्या है, जैसे यूज एनी प्लेसेस फॉर वर्कशॉप वर्कशिप्स फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। कोई भी किसी भी हाल में, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग क्यों ना करता हो, it is a code of conduct which was being model code of conduct which was being made by the election commissions। तो उसमें क्या है, कोई भी अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए कोई भी वर्शिप प्लेस यानी मंदिर मस्जिद या कोई आपका चर्च एक्सेट्रा नहीं यूज कर सकता है इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए। ठीक है, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन। किसी भी लेवल का गवर्नमेंट व्हीकल्स यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे आप कहीं गवर्नमेंट की कार है या गवर्नमेंट ने आपको जो कोई भी व्हीकल्स दिया है, इफ यू आर इन अ पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्शन की डिटेल डिस्कस होते ही आपकी सीट जो है वो जीरो हो जाती है। उसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल्स को यूज नहीं कर सकते अपने पर्पस के लिए, और ना ही कोई एयरक्राफ्ट, अगर वो गवर्नमेंट्स का है सरकारी है तो उसको आप अपने पर्पस के लिए अपनी रैली के लिए या अपने कैंपेन्स के लिए यूज नहीं कर सकते। वंस द इलेक्शन आर अनाउंस, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। देखिए जिस डेट, कहते हैं आचार संहिता लग जाना, जिस डेट पे इलेक्शन डिसाइड हो गया और आचार संहिता लग गई, उस डेट के बाद जितने भी मिनिस्टर हैं जो प्रीवियस पार्टी के हैं या जो रूलिंग पार्टी में हैं, वो किसी भी टाइप के नए प्रोजेक्ट को साइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो इस टाइम पर ऐसा प्रोजेक्ट साइन करें दैट विल अ माइलस्टोन फॉर देयर वोटिंग, उनके वोट के लिए एक सपोर्ट माइलस्टोन बन जाए। तो फॉर दैट सेक द इलेक्शन कमीशन हैज डिसाइडेड द कोड ऑफ कंडक्ट, and under this specific code of conduct they have to follow this all specific rule। if any of the party abolish any of the rule, तो उसको क्या होता है, उस पार्टी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उसकी जो विनिंग सीट है उसको भी एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए किसी भी टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, जैसे ही आचार संहिता लग गई अब कोई भी पॉलिटिक्स डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, और किसी भी टाइप की पब्लिक प्रॉमिस या पब्लिक फैसिलिटी की प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। वरना क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कोई भी लीडर है, अभी सपोज बीजेपी की गवर्नमेंट है, अब आचार संहिता लग गई, अब बीजेपी क्या करेगी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई नए नए डिसीजन उसने फॉलो कर दिए, बहुत सारी जॉब निकाल दी, बहुत सारे पब्लिक काम कराना शुरू कर दिए, तो वो सब नहीं कर सकता। ठीक है, ये सारे उस सारे वर्क को नहीं कर सकते इफ दिस टाइप ऑफ द सिचुएशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट। ईच एंड एवरी पार्टी हैव टू कीप इन दिस कोड ऑफ कंडक्ट इन द माइंड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन्स। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट के बाद हम जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है पूलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट। ठीक है, तो पूलिंग एंड काउंटिंग ऑफ द वोट विल डिस्कस लिटिल इन दैट, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इन डिटेल। जैसे फर्स्ट थिंग्स क्या हो गई, वोटर लिस्ट फाइनलाइज हो गई, उसके बाद इलेक्शन का नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन के जस्ट बाद फिर क्या हुआ, आपका इलेक्शन कैंपेन्स हो गए, उसमें लोगों ने अपने अपने तरीके से हर वो चीज की जिससे वो वोटर्स को अट्रैक्ट कर पाए, so that the voter will cast the vote in their support only, so they make a lot of promises and other things। उसके अलावा they will keep
और दे विल साइन द कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हैव टू बी साइंड बाय ईच एंड एवरीवन, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इस सारी चीजों से एलिमिनेट कर देता है कि किसी भी टाइप की अनफेयर मीन्स को यूज ना हो इलेक्शन कैंपेन में, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट pooling and counting of the vote, means the complete propaganda that how the pooling and counting taken places, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।